القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے اس کا 3 بار نتیجہ جو رزلٹ ہے یعنی جو فیصلہ ہے وہ ڈیلے کیا گیا، مؤخر کیا گیا، اب 16 کو جو ہے وہ 17 کو دوبارہ سنایا جائے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو امریکہ میں ٹرمپ کا اقتدار جو ہے وہ 20 کو وہ منصب سنبھال رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیلے کیا جا رہا ہے یہ کیا اس کی بنیادی وجہ کہیں این اور او کا مسئلہ بھی؟ دیکھیے آپ نے کیوں ٹرمپ کو اپنے دماغوں پر اتنا سوار کیا ہوا ہے؟ امریکیوں کی مرضی ہے، وہ جس کو اپنا ملک کا صدر بنائے، ہم اپنے سر پہ کیوں سوار کریں اس کو؟ اور اس خطے میں ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، اس خطے سے امریکہ شکست کھا کر بھاگا ہے. اب وہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی کی طرف ملک کو لے جانا چاہتا ہے. ہمارے قبائل میں بلوچستان ہو، کے پی ہو، وہاں پر رٹ ختم ہو چکی ہے حکومت کی. وہاں عام آدمی اب اپنے گھروں میں زندگی نہیں گزار سکتا. غیر اعلانیہ طور پر لوگ پھر دوبارہ اپنے گھر چھوڑ رہے ہیں. ان کو اپنے گاؤں کے اندر، اپنے شہر کے اندر بچوں کے پڑھانے کے لیے اب کوئی راستہ نہیں رہا. ان کے روزی روٹی کمانے کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہی ہے. وہ اپنے علاقے چھوڑ رہے ہیں اور یہ صورتحال تقریباً 20-25 سال کے درمیان کا عرصہ ہو چکا ہے وہاں کی اس صورتحال کا، جہاں ایک علاقہ اتنا لمبا عرصہ ربع صدی تک جنگ کی زد میں رہے اور جہاں حکومتی رٹ ختم ہو جائے اس کی جغرافیائی صورتحال خطرے میں پڑ جاتی ہے. ہمیں اپنے ملک کی سلامتی کا سوال ہمارے سامنے ہے. ہم ایک جلتی ہوئی زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں یہاں پر کیوں پنجاب میں اس بات کا احساس نہیں کیا جا رہا، ملک کے دوسرے علاقوں میں کیوں اس بات کا احساس نہیں کیا جا رہا. ایسے علاقے پھر اس کے بعد جغرافیائی شکل تبدیل کرتے ہیں، پھر بین الاقوامی قوتیں آتی ہیں اور وہاں کے کنٹرول سنبھالتی ہیں، ان کے وسائل پر قبضہ کرتی ہیں. آپ کے قبائلی دنیا وہ پاکستان کے معدنی وسائل سے بھرے ہوئے ہیں. ایشیا کے بڑے ذخائر وہاں پر موجود ہیں اور اس صورتحال میں آنے والا مستقبل آپ دیکھیں کہ کیا ہم عالمی قوتوں کے لیے اس کا آماجگاہ تو نہیں بنا رہے. یہ جو آپ ٹرمپ کا سوال کر رہے ہیں میں اس میں اس قسم کے خطرے محسوس کر رہا ہوں. لہٰذا قوم کو خودداری کی طرف جانا ہوگا، خود اعتمادی کی طرف جانا ہوگا، حق خود ارادیت کی طرف جانا ہوگا کہ ہم اپنے ملک کے اندر کسی ادارے کی بالادستی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. امریکہ کی بالادستی کو کس طرح قبول کریں گے ہم؟ اچھا مولانا رئیس والا ہو 2007 میں بے نظیر بھٹو اور راشد صاحب معاہدے کے تحت پاکستان آئے. اس کے بعد یہ پیچھے سائیکل کے اوپر جو ہے جسے کہتے ہیں ایک اچھا خاصا شور مچا. اور اب یہ کیا وجہ ہے کہ جی پاکستان کے سیاستدانوں کو مجبور کیا جاتا ہے، اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ وہ امریکہ کی خصوصی حاصل کر کے پاکستان میں حکومت بنائیں. اس سے پاکستان کی سالمیت آج خطرے میں نظر آ رہی ہے. وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی طاقتیں پاکستان میں جو مجبور کرتی ہیں سیاسی قوتوں کو کہ وہ کسی جا کے ملک کے وہاں سے چٹ لے کے آؤں یہاں پہ حکومت سنبھال لیں؟ اس کو رکنا چاہیے. میرے خیال میں تھوڑا سا آپ حضرات کو بھی غور کر لینا چاہیے. ابھی پارلیمنٹ میں تازہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی. اب اس میں مذاکرات کرنے والی پارٹی حکومت کے مقابلے میں صرف جے یو آئی تھی، اکیلے جے یو آئی تھی. نہ ایوب خان کے زمانے کی طرح کوئی ڈیک بنا اس کے لیے، نہ پی این اے تھا، نہ ایم ایم اے تھا، نہ 18ویں ترمیم کی طرح پوری پارلیمنٹ کی ساری پارٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں. صرف گورنمنٹ اور جے یو آئی کے درمیان مذاکرات ہوئے خالص سیاسی نقطہ نظر کے ساتھ، آئین کی بقا کے لیے، اس کی بالادستی کے لیے، پارلیمنٹ کی بقا و بالادستی کے لیے اصول کے دائروں میں رہ کر ہم نے مذاکرات کیے اور ہم کامیاب ہوئے یا نہیں. اگر ایک پارٹی بھی ڈٹ جاتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم نے آئین پر، اصولوں پر، انسانی حقوق پر، بنیادی انسانی حقوق پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، تو دوسری پارٹیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم مل کر کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سوال پی ڈی ایم میں بار بار میں اٹھاتا رہا ہوں کہ ہم کم از کم، میں 1980 کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ، قائدین کے ساتھ شریک ہو کر مارشل لاؤں کے خلاف لڑتا رہا ہوں، جمہوریت کو طاقتور بنانے کے لیے لڑتا رہا ہوں، آمرانہ قوتوں کو کمزور کرنے کے لیے لڑتا رہا ہوں.
नतीजा क्यों उल्टा निकल रहा है कि आमराना क़ुव्वतें जो है उनकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही है, जमहूरियत कमज़ोर होती जा रही है। ये खामियां हमारे अंदर हैं, सियासतदानों के अंदर हैं, इनको हमें दूर करना होगा और एक खुद एतमादी अपने अंदर लानी होगी। अगर हम एक पार्टी खुद एतमादी के साथ गुफ्तगू करके सूरत हाल को पलट सकते हैं, बाकी पार्टी क्यों नहीं कर सकती? अच्छा सर, मौलाना साहब, ये है कि जब आईनी तरमीम की बात हो या इलेक्शन में धांधली की तो अपोजिशन एक पेज पर नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर हम हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को देखें तो बज़ाहिर इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन किसी भी मामले में वो आईनी तरमीम में यकजहती का मुजाहरा करते हैं। बिल्कुल, ये भी हमारा पहला तजर्बा था कि 8 अरकान की कौमी असम्बली की अपोजिशन, उसने मुज़ाकरात किए और 90 से ज़्यादा की अपोजिशन जमात को साथ चलाया। हमने मुसलसल एतमाद में रखा, हुकूमत से मुज़ाकरात भी करते थे, अपोजिशन जमात को एतमाद में भी रखते थे और दोनों को किनारे पहुंचाया अल्हम्दुलिल्लाह। और इत्मीनान के साथ एक बाकायदा एक अमेंडमेंट हुई आइन के अंदर। तो इस तरीके से कि अगर हम उसूल पर हों तो मैं उसूल हर एक से मनवा सकता हूँ, क्योंकि उसूल से कोई झगड़ा नहीं किया करता। सही बात और आइन के तहत हो तो उससे कोई झगड़ा नहीं किया करता। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत का है तो फिर हमने हर हालत में मुखालफत करनी है, अपोजिशन का है तो हमने हर हालत में हिमायत करनी है। नहीं, अगर हम उसूल के ताबे चलेंगे तो हम हुकूमत को भी आमादा कर सकते हैं, अपोजिशन को भी आमादा कर सकते हैं और इसका तजर्बा हमने कर लिया और उसमें हम कामयाब हुए। मौलाना साहब, अफगानिस्तान की सूरत बड़ी कशीदा है पाकिस्तान के साथ, इसका क्या हल समझते हैं? क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ पुरअमन ताल्लुकात होना बहुत ज़रूरी है बॉर्डर पर, लेकिन मुसलसल कशीदगी है पिछले 2 माह से। आपका इंफ्लुएंस भी है, आप क्या समझते हैं कि हल क्या है अफगानिस्तान? अच्छा सर, इसमें ऐड कर लें फरीकैन जो मुज़ाकरात के हैं, आपने भी सूरत हाल बताई है कबायली इलाकों की, अफगानिस्तान के हवाले से भी फरीकैन को मुज़ाकरात के हवाले से क्या मशवरा देंगे ताकि दाखिली सतह पर हम मजबूत हों और बैरूनी जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला? देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। अफगानिस्तान के बहुत से ममालिक पड़ोसी हैं, वस्त एशिया के बहुत से ममालिक अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं, ईरान उसका पड़ोसी है। लेकिन तमाम पड़ोसियों के बावजूद तारीख़ी तौर पर भी उनके ताल्लुकात बरसग़ीर हिंद के साथ थे। पाकिस्तान बन जाने के बाद भी उसके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ रहे हैं और ये एक दूसरे से जुदा न होने वाले 2 पड़ोसी मुल्क हैं, बिरादर इस्लामी मुल्क हैं। मुश्किलात आती हैं, तनाज़ात कोई दूर के आदमी के साथ नहीं हुआ करते, पड़ोसी के साथ ही हुआ करते। महल्लों के अंदर भी कोई पड़ोसी से उलझता, लेकिन मामलात तय हो सकते हैं। आज भी कोई बात गई गुजरी नहीं है। हमें एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर किरदार अदा करना होगा। जज्बाती रियासत के तौर पर किरदार अदा करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। और मैं इलेक्शन से पहले जा चुका हूँ, मैं अपने वफ़द के साथ 1 हफ़्ता वहाँ गुजार कर जितना एजेंडा मैं लेकर गया था 100% कामयाब होकर वापस आया हूँ। और मैंने अपने मुल्क के निज़ाम को बताया सारा कुछ और उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा इसका मैकेनिज़्म क्या होना चाहिए। मैंने कहा वो आप बनाएं, अगर कहीं मुश्किल होगी तो हम ताउन करेंगे। लेकिन उन्होंने ही फिर जमीयत उलमा इस्लाम पर आरा खींचा और इलेक्शन में जो हमारे साथ उन्होंने हश्र किया और अब तक हो रहा है। यानी बलूचिस्तान में अभी एक सूबाई असम्बली के वोटों की वेरिफिकेशन की नादरा ने तो रिपोर्ट ये लिखी कि 2% की वेरिफिकेशन हम कर सके हैं, बाकी का पता नहीं चल रहा है। 98% का पता नहीं चल रहा है, 2% का पता चला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी एक और हल्के के बारे में कि 5000 वोट जो हैं उसका कोई पता नहीं चल रहा। 15 इलेक्शन पोलिंग स्टेशन को दोबारा इलेक्शन कराओ। सब के सब पर हम जीते हैं। फार्म 45 कहता है कि जीओआई जीती है और जो जीता है वो सब पे हारा है और उसके बाद उसको जितवा दिया। तो ये चीज़ें अगर हमारे मुल्क के इलेक्शन में होती रहेंगी तो आप बताएं किस तरह मामला हल होंगे, किस तरह दिल चाहेगा किसी का कि खुशी के साथ ताउन होता है। एक शरह सदर के साथ, कुशादा दिली के साथ गुफ्तगू होती है और ताउन हुआ करता है। ये तो नहीं कि आप मुझे ज़बा करते रहें और मैं आपकी ज़िंदगी तलाश करता रहूँ। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें जो है हमें हर चीज़ पर नज़रसानी करनी होगी। जब तक ये इदारे
अपनी गलतियों पर, अपने इरादों पर, अपने अज़ाइम पर, अपने एजेंडे पर नज़रसानी नहीं करेंगे, एतमाद की फ़ज़ा पैदा नहीं हो सकेगी। मौलाना साहब, जो पुरम की सूरत हाल है, आपने पेशावर में बड़ी इस पर गुफ्तगू की, अब क्या समझते हैं कि इस मसला ये है क्यों और इस किस तरह से हल हो सकता है? पारा चनार में कुछ चीज़ जो है वो नहीं पहुँच रही, डीजल पेट्रोल ख़त्म है, अद्वियात जो है वो ख़त्म है, लोगों की ज़िंदगी जो है जीरो हो चुकी है। हज़रत बुनियादी बात तो यह है कि 20-25 साल का तनाज़ा है जो मुसलसल चल रहा है, जायदादों का तनाज़ा है, कबीले हैं, अब उसको शिया सुन्नी का नाम क्यों दिया जा रहा है? ये जो हमारे यहाँ एक रिवायत चल पड़ी है कि अगर आपके मोहल्ले में कोई सुन्नी रहता है, कोई शिया रहता है, कोई वहाबी रहता है, कोई अहले सुन्नत रहता है आपस में, तो मोहल्ले के अंदर अगर कोई उनका तनाज़ा है किसी प्लाट के ऊपर, किसी दीवार के ऊपर, किसी लेन देन के मामले में, उसको मसले की झगड़ा क्यों करार दिया जाता है? वो खालिस उनका आपस का झगड़ा होता है, कारोबारी मामला होता है आपस का जी। अगर वहाँ पर कबायली एक तनाज़ा है तो कबायली तनाज़े को रियासत तय करे ना, क्यों उसके खिलाफ जो है फ़िरक़ों को उठाते हैं? और अजीब बात यह है कि साथ में वो हाट पड़ा हुआ है, शिया आबादी पड़ी हुई है, हंगू पड़ा हुआ है जो शिया सुन्नी आबादी पर मुश्तरक इलाके हैं, वहाँ तक उनकी गर्मी नहीं पहुँच रही जो पड़ोस में है, और ये गर्मी कराची तक पहुँच जाती है, लखनऊ तक पहुँच जाती है, तेहरान तक पहुँच जाती है। ये कौन सी गर्मी है? लाहौर तक भी नहीं पहुँचती उसकी गर्मी। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं, जो गलत तस्वीर के साथ दुनिया के सामने पेश की जाती हैं और नई नई दुकानें खोली जाती हैं, ये साजिशी पर मकासद होते हैं। इनको कौम की फलाह का कोई फ़िक्र नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम का एक प्लान है कि हम उस प्लान के तहत वहाँ पर कबाइल की अपनी मुदाखलत के साथ, ख़ुद कबाइल की मुदाखलत के साथ वहाँ पहुँचें, उस पर किरदार अदा करें। लेकिन अगर इदारे रास्ता छोड़ दें, अगर वो समझे कि नहीं सब चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, एक दिन का भी हमारे बगैर के नहीं हिलना, तो फिर कैसे मामला हम करेंगे? कैसे कोई किरदार अदा करेगा? किरदार अदा करने के लिए खुद एतमादी चाहिए, और खुद एतमादी के साथ हम कोई भी किरदार अदा करने को तैयार हैं।